Yes, good morning, everybody. So, according to Arrhenius equation, K is equal to AE raised to minus EA upon RT. Right? We discussed this equation where K stand for a rate constant. Okay, A stand for Arrhenius constant. Then EA is equal to activation energy. R is a gas constant and T is the temperature. Also, we discuss if we take a log K is equal to log A minus EA upon 2.303 RT. We discussed this equation, and at two different temperatures, just tell me whether we discussed this equation or not. Log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R into bracket 1 upon T1 minus 1 upon T2. Have we discussed this equation? Yes? Have we discussed this equation? ये इक्वेशन किया है क्या हम लोगों ने? किसी को कुछ याद है? प्रबुद्ध, केतकी, अनुश्री? अच्छा नहीं किया, चलो ठीक है, ये करते हैं। ये वाला ऊपर वाला किया है ना, log k इज इक्वल टू log a माइनस ए अपॉन 2.303 RT, ये किया था, बराबर? चलो ठीक है, तभी हम लोग इस ये इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं वो देखते हैं हम लोग। वेरी सिंपल. So, as I already told you, rate constant depends on temperature. Rate constant only, मतलब rate constant जो है वो कैसे डिपेंड है टेम्परेचर पे, उसका एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग देना चाहते हैं. ओके, so let us consider at temperature T1 ये हो जाएगा log K1 is equal to log A minus EA upon 2.303 RT1. Equation 1 हो गया, correct? Now at temperature T2 ये हो जाएगा log K2 is equal to log A minus EA upon 2.303 T2. ये इक्वेशन 2 हो जाएगा. Now I'll write log K2 minus log K1 is equal to log A cancel हो जाएगा, right? So I'll write minus EA upon 2.303 RT2 minus plus EA upon 2.303 RT1, correct? log K2 minus log K1 हो जाएगा log of K2 upon K1, that is equal to EA upon 2.303 R. ये मैंने कॉमन ले लिया, so ये प्लस साइन, so I'll write 1 upon T1 minus 1 upon T2. ये इक्वेशन आ जाएगा. समझ रहा है? हाँ, ये वापस एक बार सब कुछ लिख लेना. Write down this. So I can say this way. Yeah, I think ये मैंने explain किया था. Thus
अगर टेम्परेचर मैंने चेंज किया, सपोज टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया, तो ई ए अपॉन आर टी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा डिनोमिनेटर में ना, जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये पूरे इसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। सो अगर ये कम है देन माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, करेक्ट। माइनस साइन डाल दिया तो वैल्यू अपोजिट हो जाएगा, तो बढ़ेगा। सो अगर ये वैल्यू इस इक्वेशन की तरफ जाओ, अगर ये वैल्यू बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली देयरफॉर log k का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। दैट इज k का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अगर k बढ़ा तो रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा, बिकॉज रेट इज इक्वल टू व्हाट, k इनटू कंसंट्रेशन ना, तो इसलिए रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? इट वाज ऑब्जर्व दैट, जनरल रूल, ओके, इट वाज ऑब्जर्व दैट, नोट में लिख रहा हूं यहाँ पे, for every 10 degrees Celsius rise in temperature increases rate of reaction, or I can write rate of reaction almost get doubled. Any reaction और sometime वो ट्रिपल भी हो जाता, ट्रिपल। अंडरस्टूड? लिख लो ये, वापस एक बार लिख लिया लेना, अगर लिखा है तो भी लिख लेना। चार्जिंग लगा। So let us move for the next part. Everybody has written? Done everybody? हो गया सबका? अनपढ़ कौन है? महेश लांजीकर। So now let us move ahead. Effect of catalyst.
first of all, let us consider why that as the temperature increases, rate of reaction increases. This was given by Maxwell. So Maxwell distribution of energies. So ये ग्राफ एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड में भी किया है हम लोगों ने इन अ गैस लॉस. y एक्सिस पे मैं लिखता हूं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल. y एक्सिस पे मैं लिख रहा हूं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल. Okay, rather it is nothing but the number of molecules. Fraction of molecules, number of molecules. और x एक्सिस पे मैं लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी. राइट. सो अगर समझो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैं ग्राफ निकालता हूं, then that graph is like this way. It is like this way. Now this graph suggests three parts. ये एक पार्ट है, ये पार्ट, ये वाला पार्ट है, where the fraction of molecules with a low energy, and this is the part where fraction of molecules से यहाँ से जा रहे हैं हम लोग, तो काइनेटिक एनर्जी goes on increasing. तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ लो एनर्जी, ये वाला पार्ट हो गया. और ये वाला जो पार्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ हाई एनर्जी. बराबर है. एंड these are the molecules which are the average kinetic energy. और ये जो नंबर है, ये नंबर, this suggests the energy possessed by maximum number of molecules, जिसको हम लोग बोलते हैं most probable. ये जो ग्राफ मैंने निकाला है, this graph is at temperature T1. Now, if I plot a graph, अगर मैंने टेम्परेचर अभी बढ़ाया तो क्या होगा, ये देखो, ये ग्राफ ना थोड़ा फ्लैट हो जाता है. And we are getting a graph like this way. This is at temperature T2. I'll say T2 is greater than T1. Now, if you observe carefully, the number of molecules with low kinetic energy, वो नंबर कम हो गया, और जिनका एनर्जी ज्यादा है वो बढ़ गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस. ओके, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा. समझ में आ रहा है. दिस इज कॉल्ड द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. अंडरस्टूड. हाँ, यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन दिया गया है. हियर ये देखो, ये ग्राफ दिया गया है ना. So as the temperature increases, the fraction of molecules with a high kinetic energy increases. Yeah, the graphical description of effect of temperature. It has been realized that average kinetic energy of molecule is proportional to temperature. The collision theory suggested a biomolecular reaction occurs only if the reacting molecules have sufficient kinetic energy and proper orientation when they collide. At a given temperature, the fraction of molecules with their kinetic energy equal to or greater than activation energy may lead to the product. With an increase of temperature, the fraction of molecules having their kinetic energy would increase. The rate of reaction thus would increase. This is depicted by plotting a fraction of molecules with a given kinetic energy versus kinetic energy for two different temperatures. So ये ग्राफ हो गया. The shaded area is proportional to the total number of molecules. The total area is same
as that of the T1 and T2. The area A plus B represent a fraction of molecules with a kinetic energy exceeding activation energy is larger to at T2 than that of the T1. This indicates that a fraction of molecules I will explain. Exothermic, I am going to explain you again. But this is not a graph for exothermic. Remember that. This is kinetic energy on x-axis and fraction of molecules with a given kinetic energy x-axis, y-axis. Whatever you are talking about exothermic and endothermic, I am coming to that point also. हाँ? ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक इससे कुछ नहीं पता चलता, इससे सिर्फ हम लोग को ये पता चलता है देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स विद अ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इट. Okay, so increase in a temperature increases the rate of the reaction because kinetic energy of the molecule increases. Yes, statement important है क्या? Increase in a temperature increases the rate of the reaction because there is an increase in kinetic energy of the molecules. Yeah. Okay, so the rate constants for a first order reactions are 0.6 second inverse. अभी ये problem है, it's very simple problem. हम लोग और problem करेंगे, just मैं बता रहा हूँ. The rate constant for a first order reaction are 0.6 second inverse at 313 Kelvin and 0.045 second inverse at 293 Kelvin. Calculate activation energy. ठीक है, तो अगर समझो ये अपना K1 है, देखो सेकेंड इनवर्स है मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये याद रखो. दिस इज अवर K1. ऐसे आइडेंटिफाई कर दे तुम लोग को आना चाहिए. एंड दिस इज व्हाट टेम्परेचर T1, ये है K2 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द टेम्परेचर T2. ठीक है, क्या निकालना है मुझे? एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है. तो मुझे व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट, EA इज इक्वल टू व्हाट, now can you see the problem? Can you see the problem? Okay. So the rate constant for a first order reaction are 0.6 second inverse at 313 Kelvin and 0.045 second inverse at 293 Kelvin. What is the activation energy? So see, this is nothing but your K1 and this is nothing but your K2, sorry, T1 temperature. 0.045 सेकेंड इनवर्स मतलब ये रेट कांस्टेंट है K2 और ये क्या हो जाएगा 293 केल्विन, दैट इज T2 एंड द एक्टिवेशन एनर्जी इज नथिंग बट EA. ये मुझे कैलकुलेट करना है. सो अपना फॉर्मूला log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R into bracket T2 minus T1 upon T1 T2. T2 कितना है अपना 293, T1 कितना है 313. सॉल्व करो तो ये नेगेटिव आ जाएगा तुम लोग, बराबर. अच्छा, ये पूरा वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा. अगर ये नेगेटिव है ना तो इसको रेसिप्रोकेट करो. आई शो यू, वेट. मतलब कुछ ट्रिक्स है जो तुम लोग को याद रखने हैं. देखो अभी प्रॉब्लम तुम लोग को नहीं दिखेगा, जस्ट पे अटेंशन ऑल ऑफ यू. मैं लिख रहा हूँ, डेटा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, सो दैट द रेट, मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है, यू विल नॉट सी दैट प्रॉब्लम. आई एम राइटिंग द डेटा. ये है प्रॉब्लम 6.12. The rate constant for a first order reaction. First order reaction. हाँ, ये आदत डाल दो ऑर्डर लिखने की. उसके बाद K1 दिया है
0.6 सेकेंड इनवर्स और टेम्परेचर T1 रहेगा 313 केल्विन। K2 दिया है 0.045 सेकेंड इनवर्स और T2 दिया है 293 केल्विन। तो क्या निकालना है मुझे? I need to calculate activation energy. So फॉर्मूला क्या होगा? Log of K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R into bracket 1 upon T1 minus 1 upon T2। ये अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, बस उसको ही यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। अभी log K2 का वैल्यू कितना है? 0.045 divided by 0.6, right? 0.045 and 0.6, correct, is equal to activation energy I need to calculate divided by 2.303 into 8.314। तो इसका जो यूनिट रहेगा जूल पर केल्विन पर मोल इज द यूनिट फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब जूल्स रहेगा, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे आएगा 1 अपॉन T1 और मतलब T2 माइनस T1, T2 मतलब 293 माइनस 313 डिवाइडेड बाय 293 मल्टीप्लाइड बाय 313, ठीक है। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो तुम लोग का आंसर आएगा वो क्या रहेगा? ये देखो 293 माइनस 313 माइनस 20 हो जाएगा वो। सो माइनस 20 इंटू ए, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 293 मल्टीप्लाइड बाय 313। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ये माइनस साइन को हटाना है तो इसको रेसिप्रोकेट करो, मतलब जब मैं इसको रेसिप्रोकेट करूंगा ना तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा log ऑफ 0.6, सो मैं राइट दिस इज 60, डेसिमल मैंने आगे लिया, डिवाइडेड बाय 4.5, चलेगा ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, 60 डिवाइडेड बाय 4 पॉइंट। मैंने क्या किया, व्हेन यू रेसिप्रोकेट दिस, जब मैं इसको रेसिप्रोकेट करता हूं तो यहाँ पे माइनस साइन है, ये माइनस साइन और ये इधर वाला माइनस साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए log 60, और ये समझा ना डेसिमल कैसे मैंने आगे लिया, इज इक्वल टू व्हाट? 20 इंटू ए अपॉन 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 293 मल्टीप्लाइड बाय 313। अभी इसको सॉल्व करो, पहले ये लॉग का वैल्यू निकालो, इसमें एंटी लॉग नहीं निकालना है। अभी लॉग का वैल्यू है तो लॉग का वैल्यू निकालो, एंटी लॉग निकालोगे तो वापस वही आंसर आएगा। तो log 60 अपॉन 4.5 करो, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करो, और फिर बाद में एंड में अगर तुम लोग लॉग टेबल यूज कर रहे हो तो लॉग कैलकुलेशन करो, अगर अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेशन करो, ठीक है। समझ में आया? ये कर सकते हैं ना हम लोग, यू कैन डू दिस, राइट। अच्छा, अभी आई वांट टू टेल यू अबाउट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन।
सो ये है अपना एक्स एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्सिस में है रिएक्शन प्रोग्रेस। रिएक्शन प्रोग्रेस मतलब हाउ वी मूव फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्शन प्रोग्रेस। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस। सो नाउ इफ आई प्लॉट अ ग्राफ, देखो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ रिएक्टेंट का, हर एक रिएक्टेंट, हर एक सब्सटेंस का कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, कभी भी वो जीरो नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी जीरो तभी होगा जब वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बराबर। अभी रिएक्शन हैज नॉट स्टार्टेड, सो ऑब्वियसली द रिएक्टेंट हैज सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। नाउ टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट वी नीड टू सप्लाई सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, बराबर। ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। नाउ वंस द प्रोडक्ट इज फॉर्म, नाउ ये ऐसे बनेगा एक्सोथर्मिक। पहले ये समझ लो, ये रिएक्टेंट है अपना और ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी जरा इधर देख लो, यहां से यहां तक एक लाइन में ड्रॉ करता हूं, ये पूरा लाइन ड्रॉ करता हूं मैं ऐसे, दिस वे, ठीक है। और ये दूसरा लाइन है ऐसे, और ये एक लाइन है फॉर द प्रोडक्ट्स, ठीक है। ओके, सो नाउ जस्ट लुक एट हियर, ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज, मतलब दिस इज व्हाट, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ना। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। देखो मुझे अलग अलग डिफरेंसेस दिख रहे हैं, ये एक डिफरेंस है और ये डिफरेंस है, ये एक डिफरेंस है, करेक्ट। ये देखो, ये एक डिफरेंस है, then this is a difference, and there is one more difference, ये difference हो गया। ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बोला ना, ये रिएक्शन यहां से आ जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा एच, है ना। डेल्टा एच मतलब क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इसमें देखा है हम लोगों ने, ये वी डिस्कस दैट इन थर्मोडायनामिक्स। तो इससे अभी डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच हमेशा निगेटिव होता है ना, लेस देन जीरो होता है। Now what do you mean by delta H? Delta H is equal to activation energy of forward reaction minus activation energy of backward reaction. समझ में आ रहा है? Yes. Activation, so exothermic reaction में delta H negative क्यों है? Because activation energy of backward reaction is greater than activation energy of forward reaction. समझ में आ रहा है? Everybody is getting, huh? Once again I am repeating, in exothermic reaction delta H is less than 0 because activation energy of forward reaction is less than activation energy of backward reaction. Understood? So अभी endothermic का graph देखते हैं। So in case of endothermic, see the graph, this has a certain energy of reactant, then ये हो गया कम और ये ऐसे आ। Now, if you observe carefully, so same way, look, we plot ठीक है, और this is activation energy of forward reaction, this is activation energy of backward reaction, और ये जो difference है, that difference is called as what, delta H, है ना।
ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, and this is delta H. Now what do you mean by delta H? Delta H is equal to activation energy of forward reaction minus activation energy of backward reaction. यहाँ पे क्या था? देखो ना, ये डिस्टेंस मेजर करो ना, ये मेजर करो, ये मेजर करो, तो ये क्या दिखा रहा है? EB is greater than EF. यहाँ पे क्या दिखा रहा है? EB is less than EF. Therefore, here delta H is what? Greater than. Yes, Anushri, now tell me your doubt. What is your doubt? Okay, no problem. So please draw this part. जल्दी करो, एक लास्ट टॉपिक लेना है, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ प्रॉब्लम्स रहेंगे. नेक्स्ट लेक्चर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. क्या ड्रॉ किया? एवरीबॉडी डन? ओके. यस, हो गया ये सबका ड्रॉ करके? मुरसुलीन है क्या आज? है. मुरसुलीन, गुड मॉर्निंग. चलो, लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट हम लोग देखते हैं. इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट on rate of reaction. On rate of reaction. So we are talking about positive catalyst. Remember this thing. Positive catalyst मतलब जो rate of reaction increase करते हैं. Now we know catalyst. Catalyst क्या करता है? Catalyst alters the path of reaction by decreasing activation energy. So क्योंकि activation energy बढ़ रहा है, since activation energy decreases, rate of reaction क्या होगा? बढ़ेगा. चलो अभी मैं ये एक्सप्लेन करता हूं विद द हेल्प ऑफ अरेनियस इक्वेशन. देखो कैसे. अपना इक्वेशन क्या है? log k is equal to log a minus minus EA upon 2.303 RT. ठीक है, अभी जरा ध्यान से देखना. एट कांस्टेंट टेम्परेचर देखो क्या होगा. ड्यू टू कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? डिक्रीज होता है.
सो अगर मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना तो ये समझ में आ जाए, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब EA अपॉन 2.303 RT, ये फैक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, अगर ये बढ़ गया ये फैक्टर तो लॉग के भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर लॉग के बढ़ गया तो के भी क्या होगा, बढ़ेगा। के अगर बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? यस। तो इसको मैं अभी ग्राफिकली समझाता हूँ। हाँ, इस चैप्टर में ग्राफ बहुत ज्यादा है, ये मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था। सो लेट अस प्लॉट वन ग्राफ। ये है y एक्सिस और ये अपना x एक्सिस है। y एक्सिस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे है रिएक्शन प्रोग्रेस। सो जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, पहला जो ग्राफ है वो ग्राफ है विदाउट कैटलिस्ट। फॉर अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ये जो एनर्जी है, दैट एनर्जी वी कॉल इट एज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। So this energy is called as activation energy without catalyst. EA is what? Activation energy without catalyst. ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, दूसरा ग्राफ प्लॉट करता हूं जिसमें कैटलिस्ट यूज कर रहा हूं। तो अभी देखो, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी सेम रहेगा, बट ये जो पिक है वो पिक नीचे आ गया। तो अभी ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस, इस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, समझो E डैश है। So that is called as what? Activation energy with catalyst. Activation energy with catalyst. Understood, everybody? So this way, catalyst decreases the rate of decreases the activation energy and hence increases the rate of reaction. Catalyst decreases the activation energy and hence increases the rate of reaction. समझ में आ रहा है? वही यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अपना ये देखो, ये एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। दैट्स इट। सो ये उन्होंने इससे एक्सप्लेन किया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो एनर्जी बिफोर कैटलिस्ट यूजिंग एंड आफ्टर कैटलिस्ट, मतलब इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। कैटलिस्ट की वजह से एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बढ़ जाते हैं। क्लियर? यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो गया। अभी कल के लेक्चर में हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे, so that this chapter will be finished. Thank you very much. Anybody having any doubt? किसी को कुछ डाउट है?